السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم نماز کی پہلی رکعت میں کچھ آیتیں سن رہے تھے، کاش کہ ہم ان کو سمجھتے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کن کو سمجھ آئی ہے تو شاید جواب مایوسی ہو، بلکہ شاید یہ بھی پتہ ہو کہ پڑھا کیا ہے۔ خیر جو بھی ہے، پہلی بات ہمیں نماز پر توجہ دینی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل ہونی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم قرآن کریم کو خود بھی تلاوت کریں تو سمجھ آئے، اور اگر نمازوں میں سنیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام مل رہا ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ اسی آیت کے بارے میں جو کہ پہلے رکعت میں پڑھی گئی ہے اس بارے میں بات چیت ہو، کیونکہ آج کی یہ رات اور یہ وقت جو ہے اسی مناسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، کہ جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہی ہے جو صحیح سچا دین ہے۔ اس میں کس چیز کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے ایک کیلنڈر پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے، آج سے نہیں، فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یہ کیلنڈر اسی وقت سے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے کہ تاکہ لوگ اس کیلنڈر پر چلیں۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، لوگ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے کم زیادہ ہونے کے بارے میں، کہ چاند مہینے کے شروع میں نکلتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے، ہر رات وہ بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مہینے کے درمیان میں مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں پھر اسی طرح باریک ہو جاتا ہے جس طرح مہینے کے شروع میں تھا۔ یہ چاند کا کم زیادہ ہونا، اس کا کوئی فائدہ مقصد بھی ہے یا ایسے ہی بس چیز چل رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے اس کم زیادہ ہونے کے بارے میں، تو اللہ فرماتا ہے قل ہی مواقیت للناس، کہ بتا دیجئے کہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے چاند کا کم زیادہ ہونا تاکہ ان کو وقت کا پتہ چلے، تاریخوں کا پتہ چلے، اور وقت سے مراد تاریخیں ہیں۔ ظاہر بات چاند کو دیکھ کر آپ کو شاید وقت کا اندازہ تو نہ ہو، لیکن چاند کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کیا معنی دین فطرت ہونے کا؟ کہ وہ فطری دین ہے کہ جو ہر انسان کے لیے قابل قبول ہے، ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ دیکھو گے کہ وہ احکامات ہیں کہ جس میں آدمی اگر بہت پڑھا لکھا ہے تب بھی، اگر وہ معمولی قسم کا علم رکھتا ہے تب بھی اللہ کے دین پر چل سکتا ہے، اور اس کو مشکل نہیں ہے۔ تو چاند کے حوالے سے ہی جو موضوع چل رہا ہے، کوئی سائنسدان اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ہو، کوئی ذمہ دار اپنے کھیت میں ہو، کوئی بدو کسی صحرا میں ہو، کوئی کسی جنگل میں ہو، کوئی پہاڑوں پر ہو، اور رات کو چاند کو دیکھتا ہے تو چاند کا سائز دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔
وہ الگ बात है कि आज के हम इस दौर में हमने चाँद को देखना ही छोड़ा हुआ है, बल्कि कभी देखने का शायद मौका ही न मिला हो कि चाँद कहाँ पर है और क्या उसका हाल है। लेकिन साबका ज़मानों में लोगों का चाँद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, सितारों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, तारीखें मालूम करने के लिए, औक़ात मालूम करने के लिए। तो अल्लाह फरमाता है कि कुल या मवाक़ीतु लिन्नास, कह दीजिए कि चाँद का कम ज़्यादा होना लोगों को औक़ात मालूम करने के लिए दिया गया है, कि ताकि उसके साइज़ से उसके कम ज़्यादा होने से पता चल जाए कि महीने की कौन सी तारीख है। तो जैसे हमें बताया है कि ये वो फितरी निज़ाम है, अल्लाह ताला का फितरी कैलेंडर है, कि जो लेबॉर्ट्री में बैठे हुए साइंसदान के लिए भी बराबर है, ज़िम्मेदार के लिए भी, किसी सहरा में रहने वाले बद्दू सभी के लिए चाँद को देखते हैं आसमान पर और उनको अंदाज़ा होता है कि महीना कहाँ तक पहुँचा, कौन सी तारीख। तो ये वो तारीख है जो अल्लाह ने बंदों के लिए मुकर्रर की है। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। तो ये है अल्लाह ताला को फितरी निज़ाम आपके कैलेंडर का जो अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन जिस तरह के शैतान ने और शैतान परस्त लोगों ने लोगों के दीन, अखलाक, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर, उनके कल्चर बदले हैं, ऐसे ही इस कैलेंडर को बदला है। तो आप देख लीजिए आज हमारे यहाँ कैलेंडर कौन से चलते हैं। अब वो कैलेंडर है कि जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि काफिरों की तारीखें हैं, उनके कैलेंडर हैं। पहले शायद इस मौजू पर बात हुई या नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये जो अल्लाह का दिया हुआ कैलेंडर है जिसका ताल्लुक चाँद के साथ है और जिसको बाद में इस्लामी हिजरी तारीख में इसको लाया गया है, अल्लाह माते कि ये है जो दीन क़य्यिम है, सही सच्चा दीन है। अल्लाह ने इसको दीन का नाम दिया है, अल्लाह ने इसको दीन का नाम दिया है। तो इससे मालूम होना चाहिए कि तारीख़ों को, जो इस्लाम की तारीखें हैं, जो अल्लाह ताला का फितरी कैलेंडर दिया हुआ है, इसके साथ चलना भी दीन है, दीन का हिस्सा है। और इसकी खिलाफ वर्जी करना अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी है। अलग बात है कि इस मौजू पर हमारे यहाँ कभी बातचीत नहीं होती, हमारे खुतबा हजरात या वाइज़ीन हजरात इस मौजू को नहीं लाते कि कैलेंडर का कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाए इस्लाम के अंदर, किस किस चीज़ का कौन सी तारीख है जिसका म्यार है। लेकिन शरीय लिहाज से देखा जाए, शरीय हुक्म देखा जाए शायद की रूह से, तो ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी दीन है आपका कि अल्लाह के दिए हुए कैलेंडर, अल्लाह की दी हुई तारीख को अपनाया जाए और उसको छोड़कर काफिरों की तारीखों को न अपनाया जाए। तो आज की रात, जिस तरह कि आज मैंने शुरू में इशारा किया है, इस आयत का मौजू इस तरह आज की रात के साथ है कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि अभी आज की रात के जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं और बाद जगहों पर जश्न मनाए भी जा रहे होंगे दुनिया के बाद इलाकों में, क्योंकि उनकी यहाँ आधी रात हो चुकी है और उनके यहाँ एक नया साल शुरू हुआ है। ये नया साल कौन सा है, किसका है? हकीकत बात यह है कि जब कोई कौम अपनी तारीख को छोड़ती है ना, अपनी तारीख को भुलाती है, तो सिर्फ तारीख ही नहीं भुलाती बल्कि उसकी इज्जत गैरत हर चीज़ जाती है, समझे ना। तो काफिरों की तारीख है, क्रिश्चियनों की तारीख है, इस्लाम के दुश्मनों की तारीख है, उनकी डेट है, उनका नया साल शुरू हो रहा है। और मनाने वाले कौन हैं? जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, वो जश्न मना रहे हैं। यानी अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें जाए, कभी फर्ज करो आपका दुश्मन उसके यहाँ को खुशी का मौका हो, हत्ता कि आम शादी ब्याह कह लीजिए जो हमारे यहाँ तो होती है, तो क्या ख्याल है आपको दुश्मन की खुशी पर खुशी होगी? आप उसके जश्न के साथ मिलकर जश्न मनाएंगे? यहाँ से पता चलता है कि हमारा दीनी गैरत का हाल क्या है, इस्लामी गैरत का हमारा क्या जनाजा निकला हुआ है कि इस्लाम के वो दुश्मन कि जिनकी तारीख भी खून से रंगी है, अगर किसी को शक है तो तारीख उठा कर देखे,
इन लोगों ने कितने मुसलमानों की इज्जतें लूटी है, उनको कत्ल किया, उनके खून बहाए हैं। तारीख भरी पड़ी है, हजारों लाखों नहीं मिलियनों की तादाद में। और आज भी इस वक्त भी सूरत हाल क्या है आपके सामने, फलस्तीन हो या कोई दूसरी जगह हो, असल वहाँ पर खून बहाने वाले कौन हैं, उनके पीछे कौन खड़े हैं? यही इस्लाम के दीन के दुश्मन हैं। और हम हैं कि उनके जश्नों के साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर खुशियां मना रहे हैं। पहली बात तो उस तारीख को अपनाना ही जिसका बताया है कि अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी चीज़ दीनी गैरत का जो तकादा है इंसान से, कि एक आपका दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है, जो आज भी आपके भाइयों को, आपकी बहनों को कत्ल कर रहा है, शहरों को तबाह, मुल्कों को तबाह कर रहा है, और हम उनका साल शुरू होने पर खुशी मनाएं और उनके सालों के साथ मिलकर चलें। हकीकत में ये वो चीज़ें हैं कि जिस पर एक मुसलमान को और फिक्र करने की ज़रूरत अपनी तारीख की तरफ लौटने की। और इंसानी तारीखों में अगर कोई आदमी मुताला करता है तो पता वो देखेगा इस्लाम से बढ़कर, इस्लामी तारीख से बढ़कर कोई रोशन तारीख उसको नजर नहीं आएगी। इस्लामी तारीख से बढ़कर कोई रोशन तारीख नजर नहीं आएगी कि वो वक़्त जो वो इस्लाम की फतूहात का वक़्त था, जो आम तौर पर कौमों के जुल्म का, ज़्यादतियों का खून बहाने का वक़्त होता है और शहरों को उजाड़ने, बर्बाद, तबाह करने का वक़्त होता है किसी कौम का, जब उनको फतूहात मिलती हैं। तो इस्लाम की तारीख पढ़कर देखिए उस वक़्त कि जब इस्लाम की फतूहात होती तो कैसे होती थी। मदाइन जो फारस का उस वक़्त की, जो ईरान बहुत बड़ी सुपर पावर थी, उसका दारुल हुकूमत फतह होता है और वहाँ के रहने वालों को बस ये था कि अब फातेह कौम फौज दाखिल होगी और शहर तबाह होगा, इससे लुटेगी और खून बहेंगे। लेकिन उस शहर के लोग देखते हैं कि अजीब फौज है, दाखिल हुए शहर में, उनकी निगाहें नीचे है, ऊपर निगाह नहीं उठाते कि किसी औरत पर नजर न पड़ जाए। इज्जत लूटना तो दूर की बातें हैं, खून बहाने तो दूर की बातें हैं। और ये एक तारीख नहीं, सिर्फ एक मिसाल नहीं, इस तरह की आपको सैकड़ों मिसालें, हजारों मिसालें मिलेगी इस्लामी फतूहात की। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध फतह किया, देबल जिसका नाम कराची या इसके करीब शहर था, शहर फतह हुआ। एक औरत उनके सामने आई, टूटी फूटी। मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि मुझे बता तेरे साथ ये किसने किया है, अगर मेरे किसी फौजी ने किया है तो सिर्फ इशारा कर और फिर देख मैं उसका क्या हासिल करता हूँ। और अगर ये तेरे साथ करने वाला तेरी ही कौम का, हिंदू कौम का कोई शख्स है, तो भी हमारी तलवारों से बचने वाले नहीं। ये मुसलमान तो, इसकी गैरत तो वो थी कि जो किसी काफर की इज्जत भी उसकी हिफाजत करने के लिए उठता था। चाहे जाए कि आज मुसलमानों की इज्जत लुट रही हो, उनके खून बह रहे हों, और हम उन्हीं काफरों की खुशियों में शरीक हों, उन्हीं दुश्मनों के साथ खड़े हों। हकीकत में बहुत बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि जिस पर हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, पहली बात तो दुनिया के लिहाज से भी क्या है, और उसके बाद आखिरत के लिहाज से भी अल्लाह ताला के यहाँ भी हमारा क्या जवाब होगा। तो ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की। खैर, बात कर रहे थे, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें इसी बात का हुक्म दिया है, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह के यहाँ जो कैलेंडर है वो 12 महीने, जब से अल्लाह ने आसमान ज़मीन के पैदा किया, वो 12 महीने कौन से हैं? मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, के जिसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब दुनिया वालों के कैलेंडर उठाकर देखें कि किस कैलेंडर में आपको हुर्मत के महीने नजर आते हैं। क्या क्रिश्चियनों के साल में, या हमारे यहाँ हिंदुओं के साल में, या किसी और कैलेंडर में आपको 4 महीने हुर्मत के नजर आते हैं? तो अगर आपको नजर आएंगे तो इस्लामी हिजरी साल के अंदर, कि वो आज, बल्कि इस महीने, ये महीना भी जो गुजर रहा है वो एक महीनों में से है। ये रजब का महीना, हुर्मत का महीना,
और इसके अलावा 3 कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। तो बात कर रहे थे कि अगर अल्लाह ने ये साथ दिया है जिसके साथ एक मुसलमान को चलना चाहिए, जिसके साथ अपनी डेट, अपनी तारीख को लिखना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। तो इस हुर्मत के महीने के हवाले से भी इस मुनासिबत से बातचीत हो जाए कि रजब का महीना हुर्मत के महीनों में से है। इसका हुर्मत का महीना होने का माना क्या है कि अगरचे अल्लाह ताला ने जुल्म, ज्यादती, गुनाह, जुर्म हर वक्त मना किए हैं, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर खुसूसी तौर पर गुनाहों से दूर रहना, जुल्म, ज्यादतियाँ, दंगे फसाद करने से मना किया है। हुर्मत का होने का माना कि जिनका एहतराम है, जिनका खुसूसी तौर पर एहतराम है। और रजब के इस महीने के हवाले से सिर्फ इस महीने की असल खसूसियत यही है कि ये हुर्मत के 4 महीनों में से है कि जिसका एहतराम होना चाहिए। आम आदमी को अमूमन गुनाहों से, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए, और खुसूसी तौर पर दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ों से भी हम तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने हमको दीन इस्लाम दिया है। इस्लाम से पहले जाहिलियत में भी वो लोग इन महीनों का एहतराम करते थे, इन 4 महीनों का एहतराम करते, हत्ता कि अपने बाप के कोई कातिल को भी देखता तो तब भी उस पर हाथ न उठाता, इसलिए कि हुर्मत का महीना है। तो चीज़ है कि हम मुसलमान होकर भी इन महीनों के अंदर हमें कोई इन महीनों का पास ना हो, इनका कोई एहतराम ना हो। तो रजब के महीने के हवाले से हमें जो करने का काम हो रहा है, इसके अलावा इस महीने के अंदर कोई ख़ास इबादतें हैं, कोई ऐसी ख़ास इबादत नहीं जो इस महीने में की जाती हो। हमारे यहाँ तरह तरह की बिदात चलती हैं, को बाद नमाज़ें भी ख़ास तरह के लोगों ने गढ़ रखी हैं, कोई रजब के रोज़े भी हैं, और रजब का उम्रा भी है, रजबिया के नाम से उम्रा किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम से पहले की हैं। और इस्लाम से पहले चूँकि हुर्मत का महीना पहले से चला आ रहा, तो इस महीने का वो लोग एहतराम करते थे, ख़ास तौर पर इसमें मुख्तलिफ़ तरह की इबादत का अहतमाम करते थे, रोज़े रखने, इस तरह की चीज़ें करना, उम्रा करना। उम्रा उनके लिए इसलिए करना होता था क्योंकि इस्लाम से पहले दंगा फसाद था, कत्ल गारत थी, लोगों को सफ़र करना मुश्किल होता, नामुमकिन होता था, सिवाय उन हुर्मत के महीनों में कि जिसमें अमन व अमान होता, और वो अमन व अमान से सफ़र करके मक्का जाते, उम्रा करते। इसलिए उनके यहाँ तो ठीक था, लेकिन अल्लाह के फजल से इस्लाम आने के बाद तो अल्लाह ने पूरे साल ही को अमन व अमान का बना दिया है। इसलिए रजब के महीने के हवाले से कोई ख़ास रोज़ा नहीं, कोई ख़ास उम्रा नहीं, कोई ख़ास नमाज़ें, ख़ास कोई इबादत नहीं जो की जाती हो। इस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये ना हो कि हम अपने तौर पर नेकियां कर रहे हों और वो अल्लाह के यहाँ नेकी के बजाय कोई बिदअत की शक्ल में गुनाह समझा जाता है, गुनाह के ज़मन में आती हो। तो इसलिए रजब के महीने में अल्लाह के नबी साहब से कोई ख़ास नेकी करना साबित नहीं। बल्कि उमर फारूक के बारे में आता है तो उनको पता चलता कि किसी ने रजब का ख़ास तौर पर रोज़ा रखा है, तो उसकी पिटाई करते, बल्कि उससे ज़बरदस्ती उसे तोड़वाते, उसका रोज़ा ज़बर से तोड़वाते कि रजब का रोज़ा कोई सुन्नत नहीं है। हाँ, वैसे रोज़े रखने चाहिए, कि जुमेरात का रोज़ा है, जिस तरह कल जुमेरात का है, वो रखना चाहिए। आगे याम बीद के रोज़े शुरू हो रहे हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन, हाँ रोज़े रखने चाहिए जिस तरह हर महीने में रखे जाते हैं। लेकिन रजब के महीने में ख़ास कोई रोज़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रजब के महीने में कोई ख़ास उम्रा, ऐसा कोई उम्रा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 उम्रे किए थे नबूवत मिलने के बाद या हिजरत के बाद। वो चारों आपके उम्रे ज़ुल्क़ादा में थे, रजब में कोई उम्रा नहीं था। रजब में आपने कोई उम्रा नहीं किया। और अगर रजब के उम्रे की ख़ास फजीलत होती तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अहतमाम करते, और ना ही सहाबा किराम ने कोई ऐसी चीज़ की है। तो इसलिए रजब के महीने में कोई ख़ास इबादत नहीं जो की जाती हो। तो इसलिए अगर हम आम गुनाहों से हमें मना किया गया है, तो मालूम होना चाहिए कि बिदात जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जुर्म है तो बिदअत है। बल्कि बाद उलमा तो बिदअत को शिर्क के साथ मिलाते हैं कि शिर्क और बिदअत एक ही चीज़ है, यानी कि बिदअत ही की एक शक्ल जो है वो शिर्क है, शिर्क तक क्या पहुँचती है। तो अला कुल हाल हमें अगर आम गुनाहों से बचने की ज़रूरत है, तो चीज़ है कि इससे बिदात जैसे बड़े बड़े गुनाह जिनको हम नेकी समझ कर जाते हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। रजब के महीने के हवाले से हमारे बाद ऐसी चीज़ें चली हुई हैं जो ना कि सिर्फ बिदात हैं बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें भी हैं। 22 रजब को आप सुनते होंगे काम होता है, क्या होता है?
کنڈے کس چیز کے کنڈے؟ ہاں سنا کنڈے امام جعفر کے کنڈے، اور بھی کچھ ہے؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے عظیم ائمہ کرام میں سے اور عظیم ہستیوں میں سے ہیں، کوئی شک نہیں، جن کو بعض لوگوں نے اپنا معصوم امام بنا رکھا ہے۔ تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس دن پیدا ہوئے، نہ اس دن فوت ہوئے، نہ اس دن موت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو 22 رجب کی اصل حقیقت کیا ہے کہ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کا دن ہے۔ تو ان کے فوت ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، کھانے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا 22 رجب کو کنڈے کیا ہوتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی میٹھی چیزیں، کوئی کھیر وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، یہ کنڈے۔ تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس رجب کے مہینے کے اس 22 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک سازش کے تحت، اور یہ سازش بھی ہمارے پاک و ہندوستان کی ہے، ان ملکوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ 22 رجب کا کنڈے بھی ہوتے ہیں کوئی، سمجھے نا۔ اور یہ کوئی زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ 150-200 سال کی ہے۔ اور میر مینائی کے نام کا کوئی مراسی تھا، اپنی کون تھا، اس نے یہ شروع کی تھی، یعنی صحابہ کا دشمن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن واضح ہیں، تو ان کی دشمنی میں اس دن کو خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ اس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ اسی میں کہا کہ اس مہینے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اور ہم نہ سمجھتے ہوئے ان سازشوں کے اندر شریک ہیں، ان سازشوں کا حصہ بنتے ہیں، جس طرح کہ آج کی رات کافروں کی، ہم بھی ان کا حصہ بن رہے ہیں، ایسے ہی اس بدعت کے اندر۔ اس لیے 22 رجب کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف سازش ہے صحابہ کے دشمنوں کی اسلام کے خلاف، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے آخر میں 27 رجب، جس کو ہمارے ہاں شب معراج کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کبھی اس پر تفصیل بات ہوگی کہ معراج کی واقعے کی تفصیلات کیا تھیں، کس طرح یہ پیش آیا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، سمجھے نا۔ اور یہ واقعہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے، معراج کا واقعہ، اسراء اور معراج کا واقعہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن کس رات کو پیش آیا، بلکہ کس مہینے میں پیش آیا، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ کس سال میں پیش آیا، اس میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں 3 سال پہلے پیش آیا، سال میں فرق، سال میں اختلاف، کس مہینے میں ہوا، کیا وہ رجب تھا، وہ اور کوئی مہینہ تھا، بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض محرم کہتے ہیں، بعض رجب کہتے ہیں، اور اسی طرح تاریخوں کے حوالے سے۔ تو واقعہ کوئی شک نہیں، آپ کی زندگی کا عظیم ترین واقعہ ہے، جس میں کوئی بال برابر شک نہیں ہے، لیکن واقعہ پیش کب آیا، اس کی کوئی ہمارے پاس تاریخی ثبوت نہیں ہے، کس مہینے میں، کس تاریخ کو، کس سال کو۔ تو اگر جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی تاریخ تھی، پھر ہم ایسے ہی کوئی رات اٹھا کے بتا رہے ہیں کس رات کو تھا۔ اچھا پتہ بھی چل جائے کہ فلاں رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ واقعہ پہ خود پیش آیا تھا، آپ اس رات کو پھر کیا کرتے رہے تھے اگلے سالوں میں؟ ہر سال واقعی وہ رات تو آتی رہی ہے، اور ان کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کون سی رات ہے، کون سا مہینہ ہے، آپ کو تو یقین طور پر پتہ تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی پتہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بعد، یعنی معراج کی رات کے بعد کہہ دیجئے کہ کم از کم آپ کی زندگی میں فوت ہونے تک یہ رات کم از کم کو 12-13 دفعہ آئی۔ اگر ہم ہجرت سے 2 سال پہلے لیں، 3 سال پہلے لیں، تو 13 دفعہ کہہ لیجیے، اگر 1 سال پہلے لیے کہ 11 دفعہ کہہ لیجیے، سمجھے نا، آپ کے مدینہ کے 10 سال تھے نا ہجرت کے بعد، تو کم از کم 11 یا 13 دفعہ آپ کی رات آئی، لیکن کبھی آپ کی رات، اس رات کو خاص طور پر کوئی باتیں کی ہوں، کوئی صحابہ کے ساتھ محفلیں کی ہوں، ہمیں کوئی ایک بھی من گھڑت حدیث نہیں ملتی۔ ایک تو نا صحیح حدیث نہیں، ایک ہوتی من گھڑ بن گئی جھوٹی حدیث، کسی نے اپنے سے جھوٹ بنا کر لگے، وہ ایسی جھوٹ گھڑنے کی بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، یا اس کو سوچ ہی نہیں آئی کہ چلو ہم کوئی جھوٹی حدیث بنا رہے ہیں، تو کہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس رات کا تذکرہ بھی کیا ہو
کہ मैं ये वो रात है जिसमें मुझे इसरा मेराज हुआ था, आपने साहबा के साथ किस तरह की बातचीत की, या साहबा ने बैठकर किस तरह के काम किए। इसलिए नेकी वो है बाजो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जिस शख्स ने वो काम किया, वो अमल किया कि जो हमारे तरीके पर नहीं, हमारी सुन्नत पर नहीं, वो मरदूद है। कुछ साल पहले मुझे याद है, मैं एक मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज के लिए बैठे हुए थे, नमाज के इंतजार में भी, तो एक आदमी आया मेरे साथ वाले से पूछने लगा, जब मुझसे पूछा उसने, क्या इस मस्जिद में आज कोई महफिल होगी, ये 27वीं अपने 27वीं अपने रात थी जिसको शब मेराज कहते हैं। कहने लगा कि आज कोई यहाँ पर महफिल होगी। मैंने कहा यहाँ पर तो कोई महफिल नहीं होती। मैं किस चीज़ की महफिल? कहता है यहाँ 27वीं रात है ना, 27 रजब है तो शब मेराज है। मैं कि यहाँ पर इस तरह की महफिल नहीं होती। अच्छा, मैंने साथ वाले से पूछा कि आदमी पहले कभी आपने मस्जिद में देखा है? कहते पहली बार मस्जिद में देखा। यानी यह आदमी शब मेराज मनाने मस्जिद में आया है, वरना उसको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं। और ये हाल है, सिर्फ उसका नहीं, इस तरह के काम करने वालों का अक्सर बेहतरीन हाल है कि वो रातें मनाएंगे, कुछ शब मेराज है, कोई दूसरी रातें हैं, कोई आगे शाबान की शब बरात है, इस तरह की रातें मनाएंगे, इस तरह के दिन मनाएंगे, लेकिन असल जो काम करने का है, नमाज जैसा अहम तरीन फरीज़ा जो है, उस नमाज को पढ़ने की तौफीक नहीं। और तो और बाद औक़ात सारी रात महफिल चलती है, जलसा होता है और जो कुछ होता है, और आगे फजर की नमाज कौन पढ़ रहा होता है वो देखिएगा। इसी से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लोग किस दीन पर चल रहे हैं, किसके दीन पर चल रहे हैं। इसलिए भाइयों, हमें ज़रूरत है 2 मैसेज आज के एज को, एक तो आज की रात के हवाले से कि ये रात, ये स्याल मुसलमानों का नहीं है, काफिरों का है। उनके जश्न मनाना हमें ज़ेब नहीं देता, बल्कि हमें लायक, हमें जायज़ ही नहीं हमारे लिए। गैरत का तकाज़ा भी है कि ऐसे काफिरों के, ऐसे दुश्मनों के साथ मिलकर खुशियाँ ना मनाएं, समझे। और दूसरा, इस महीने के हवाले से, रजब के महीने के हवाले से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुन्नत है और क्या सुन्नत नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो चीज़ करें जो अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उन चीज़ों से बचने की तौफीक दे कि जो आपकी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बारक अल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर।